स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि रात में ईरान के साथ अमेरिका की नेवी क्या कर रही थी और किस तरीके से अमेरिका बहुत सारा तेल निकाल। अब क्या है मामला यहाँ पर। इसी बीच भारतीयों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है लगातार दूसरे दिन। अब भारत ने क्यों नोटिस जारी किया, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर। अभी ईरान और अमेरिका की लड़ाई थोड़ी थमी और इसके थमने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान भी दे दिया है। स्क्रीन पर इस बयान को सुनिए। Military in the world, and I gave them a break at the request of Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan. Great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war if it wasn't for me. But they became friendly to me, very friendly, and they're close to Iran, and they worked. And they still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama deal, JCPOA, the worst deal. That was a path to a nuclear. It's the exact opposite. You know, I like on television, say, oh, they should have kept that deal. First of all, it was over. It was a short-term deal. But that deal was a path to a nuclear weapon. This is a path against a nuclear. You can't have a nuclear weapon. His was a path to a nuclear weapon. They were developing during his administration nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents. I have to say that. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people sitting there. डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के कारण थोड़ी राहत दे दी है। अब हो क्या रहा है, इससे पहले इनके वॉर मिनिस्टर हैक्सेट, इन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम सबक सिखाएंगे, तो हम इस बार सबक सिखाएंगे और अच्छे तरीके से सबक सिखाएंगे। और इसके बाद ईरान के ऊपर हमले होने लगे। ईरान ने भी हमले का जवाब देना शुरू कर दिया। अगर स्पुतनिक की इस खबर को देखें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। जहां यूएस सेंटकॉम ने ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर डिफेंस और सर्विलांस साइट्स के ऊपर हमला किया। ईरान ने भी बहरीन में, कुवैत में, होर्मुज में हमले लगातार किए और साथ ही साथ जो आने जाने वाले जहाज थे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरीके से बंद है और अगर कोई भी इससे गुजरने की कोशिश करेगा तो उसको हम निशाना बनाएंगे। यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जो छूट थी कि मित्र देश यहाँ से पार हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सब कुछ बंद कर दिया गया। स्क्रीन पर आरटी इंडिया की भी खबर देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 वेसल्स जो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर निशाना भी लगा लिया गया। अब यहाँ पर सेंटकॉम यानी अमेरिका का कहना है कि हमने ईरान पर हमला किया सेल्फ डिफेंस के लिए, वहीं ईरान का कहना है कि हमने अपने बचाव के लिए अब हमले करने शुरू कर दिए। इस बीच एक नई चीज निकल कर आई और ये नई चीज बड़ी अजीब थी। स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, ये क्या कह रहे हैं। Inflation to come down between now. Oh, when the war is over? Yes. It's coming down. I know you can't. It's going to come down like a rock. And again, we're taking out millions, which I'm just announcing today for the first time, but we've been taking out millions of barrels of oil. Millions of barrels. Every night we took out oil. But now I'm going to tell you because they just figured it out. So now that they figured it out, I can tell you. It was very hard for me. I wanted to say it so badly, but I didn't want to ruin it. But it was very hard. But millions of barrels of oil has come out. That's why it's at $85, $90 a barrel instead of $250. But we have the greatest military in the world, the toughest military in the world, just the best in every way. Nobody even close. There's no military that's even close. I rebuilt it during my first term. I'm using it now. When this conflict is over, Todd said, please call it a conflict. No, as opposed to the word war. He didn't like that word war, but it's sort of a conflict. It's a military operation. When it's over, you will see oil drop to where it was before. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम रात में ना मिलियन बैरल्स तेल निकाल रहे थे ईरान, और मेरा मन तो अंदर से कर रहा था कि कब मैं बताऊं, लेकिन मैं आज बता रहा हूं क्योंकि ईरान ये चीज जान गया था। अब इस कहानी को जरा ऐसे समझिए, लगता है जैसे ईरान को पता चल गया कि अमेरिका यहाँ से मिलियन बैरल्स तेल रोज रात को निकाल रहा है और उन्होंने तब जाकर अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बना लिया। जब अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बना लिया तो फिर अमेरिका ने भी ताबड़तोड़ यहाँ पर एक्शन ले लिया। इसके वॉर मंत्री कहते हैं
कि अगर आप डील फाइनल नहीं करोगे तो कहानी और आगे बढ़ेगी। पर इन सब के बीच में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई है? सबसे बड़ी समस्या ये हुई है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को बधाइयां दे रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पीएम मोदी भारत के सबसे ज्यादा लंबे समय तक पीएम रहने वाले पीएम बन चुके हैं और ऐसे में ये कहते हैं कि वो मजबूत है, वो हेल्दी है, वो चतुर है और भी आगे कई सालों तक वो राज करेगा। पीएम मोदी को ये अपना फ्रेंड कह रहे हैं, लेकिन इस बीच लगातार ओमान पर निशाना लगाया जा रहा है। अब एक और ऑयल टैंकर को निशाने पर लगा लिया गया और न सिर्फ इतना बल्कि सेंटकॉम ने इसकी वीडियो भी रिलीज की कि किस तरीके से हमने इस ऑयल टैंकर पर निशाना लगाया। और सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात क्या है, इस ऑयल टैंकर में 21 भारतीय थे। 3 भारतीय तो पहले मिसिंग बताए गए, 21 को निकाल लिया गया, बचा लिया गया, पर अब उनमें से 2 को बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। और सबसे ज्यादा दुख की चीज देखने को मिली जब सिद्धांत सिब्बल इस घटना पे पोस्ट कर रहे थे तो एक नाविक आदित्य शर्मा के पिता इन्होंने मैसेज किया कि वो मेरा बेटा है, आप बताइए असल में क्या हुआ है और क्या वो जिंदा है या नहीं। बाद में खबर आती है कि वो जिंदा नहीं बचे। अब एक मिसिंग है। ये एक घटना जिस घटना ने भारत के अंदर भी हलचल मचा दी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, जैसे स्क्रीन पर ANI की इस खबर को देखिए, कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं होगा कि उसके अंदर क्रू मेंबर कौन है। अमेरिका ने इस पर हमला किया, भारतीय नागरिक होने के बावजूद इस पर हमला किया, ये गलत। और अमेरिका का कहना है कि ये जो जहाज था, ये जहाज हमारे ब्लॉकेट को तोड़ रहा था, इसलिए हमने इस पर हमला किया है। यानी अमेरिका का साफ संदेश है कि वहाँ से हम किसी को भी तेल निकाल कर ले जाने नहीं देंगे, ईरान को आर्थिक मदद हम पहुँचने नहीं देंगे। अब भारत ने इसको लेकर विरोध जताया, भारत ने उनके प्रतिनिधि को बुलाया है, उनको अपना विरोध सौंपा है। वहीं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं UN में भी भारत ने अपने विरोध को लेकर सीधे बात कही है कि इस तरीके से ऑयल टैंकर को निशाना बनाना सही नहीं है। माना ऑयल टैंकर हमारा नहीं है, लेकिन हमारा वर्क फोर्स काफी बड़ा है और ये दुनिया के कई जहाज एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इस तरीके से आप मानव क्षति पहुंचा रहे हैं, किसी के ऊपर भी हमले कर दे रहे हैं, तो ये एक मानव क्षति है जो आपको नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब युद्ध का मैदान होता है ना, तब ये देखा जाना मुश्किल है। अब अमेरिका इस पर कहेगा कि हमने ये तो देखा कि आपका जहाज नहीं है, आपके लोग उसमें हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। अब वो ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में इतने सारे जहाज हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, हमने ब्लॉकेट लगा रखा है। आप उन एजेंसियों को कहिए जो इन जहाजों को चला रहे हैं कि इस तरीके से ब्लॉकेट को तोड़ कर आने की कोशिश ना करें। तो यहाँ मामला क्या होगा, भारत ने एक बयान जारी किया, इस बयान के बाद हो सकता है कि जांच की कमेटी बैठ जाए, उससे ज्यादा यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता चल रहा है कि ईरान और अमेरिका की ये लड़ाई अब उस क्षण तक पहुँच गई है जहाँ या तो डील फाइनल होगी या फिर कुछ भयानक होगा, क्योंकि ऐसे दोनों ही एक दूसरे के साथ अगर भिड़ते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जहां कुछ बड़ा हो जाए। भारत के इस विरोध के बाद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने के बाद क्या अमेरिका हमले रोकेगा और अमेरिका इस ब्लॉकेड में जगह बनाएगा ताकि भारत जैसे देश यहां से निकल सके? आपको क्या लगता है इन सब परिस्थितियों का क्या असर होने वाला है दुनिया के एनर्जी प्राइसेस में भी और साथ ही साथ भारत के ऊपर भी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।